start our today's session. In today's session, you people will learn about critical practice. This critical practice by Catherine Balsay. She studied, that she is teaching in Derby University, she was born in England. So if we talk about, she's still alive, she's still living, and she's, that she's, I think, first author I'm teaching, she's still living. So talk about the rest of the writer. Until now, I have taught you, they are almost all died. Even Arthur Miller or John Ashbery. So these all writers are died. And recently, 2009, Toni Morrison, she also died. She was a black African writer. She wrote jazz novel and Blue Eyes. I have taught today. So I'm very happy she is still living, and she, she's a critic, she's a writer, novelist, like that, and she's a professor as well. She's working as a professor. So talk about her book. In her book, she has encapsulated a lot of theories in her, book. So if you want to study her book, it's very difficult to study because she is discussing all philosophers and writers' critic as well. So she does not give her own theories related to criticism. Rather, she says that how the center of attention from reader, from the author's biography, from book, and ultimately it has shifted to the reader itself. No, reader is a producer of the text. No, it looks that reader is in fact producer of the sense, ultimate sense in the reader, whatever reader takes now. So through deconstruction, lot of things have been changed. So how deconstruction see things? It sees thing with different perspective. For example, I give you example, and it has been discussed in one of our book as well. So according to deconstruct, if there is a somebody, there is a woman who is totally nude, and there is a person who is having a knife in his hand, and he is going to kill that girl, that lady. So what happened? So lot of people will just derive sense, maybe he is a rapist and he is going to rape the woman. But what happens? According to structuralist point of view, he may be rapist and he is going to rape the woman. But according to post-structuralist, when you follow the post-structuralist or deconstruction, what will happen? There will be multiple meaning. You will see that what she is wearing when he was going to kill, whether he is a husband or lover or his brother or his like that. So there will be multiple meanings. So what she was wearing when she was being killed, whether she killed and what happened after this, and what was the situation before that. So according to post-structuralist, they deconstruct things, and after deconstruction they derive new meanings. So they are not seeing a thing as it is, as in a structure. डिकंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे मीनिंग देखती है, चीज़ को ब्रेक डाउन करके. मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्ट्रक्चरलिस्ट को ये कहें कि ये क्या है, तो ही विल से इट इज़ जस्ट अ मार्कर. यानी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, ये कलर ये नज़र आ रहा, तो ये पेंसिल है. सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट ही से दैट इट इज़ अ पेंसिल एंड इट इज़ यूज फॉर राइटिंग. सो ही विल स्टडी according to its structure. It's a structure like it's just like it is used for the writing. So it is for the structuralist, it is just a marker or pencil. It is used for writing. He will not see other things. But according to deconstructionist or post-structuralist, he is going to break it down, and he will see whether it is writing like it has a black ink or it has a blue ink, and he will deconstruct and break into pieces, and he then find meaning. So deconstruction is is a philosophy through which you deconstruct and you derive new meanings. So it is more, you can say that it is more plausible. So people like it as compared to structuralists. Both theories are used. So writers, they constructed structuralists and later they rejected, like Ronald Barthes
and rest of the writers, they themselves constructed post structure, they themselves constructed theory structuralist, and after that they even rejected this theory that it is not good. So she discussed a lot of philosophers. She discussed about the Ferdinand de Saussure and post-Saussurian writers as well, how they developed the meanings of the language. So over here, the first thing in critical practice, and you please write some points, because I've already shared one of lecture and you might have heard this lecture from YouTube. Over there I discussed about the point, there are 6 chapters in critical practice that we are right now we are going to study. The first very first chapter, Catherine Balsay, she wrote a book 1980 roundabout, 1980 roundabout इसने लिखी है बुक, और इसकी अपनी जो एज है 1940 में ये पैदा हुई है कैथरीन बेल्से। जो हम इसके अंदर जो फ़िलासफ़र हम डिस्कस करेंगे उनके नाम लिख लें, मुझे याद करवा दीजिएगा अगर मैं भूल भी जाऊँ, ये मैं सारे डिस्कस। फर्डिनेंड डी सॉशर, ये डिस्कस करती है फर्डिनेंड डी सॉशर का कंसेप्ट। फर्डिनेंड डी सॉशर जो थे वो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे और फ्रेंच, इन्हें कहा जाता है स्विस बोर्न फ्रेंच फ़िलासफ़र। फर्डिनेंड डी सॉशर जो हैं वो 1857 में पैदा हुए हैं, 1913 में इनकी डेथ हुई है फ्रांस के अंदर राउंड अबाउट। और इनकी डेथ के बाद इनके जो स्टूडेंट थे, जैसे मैं आपको लिखवाता रहता हूँ चीज़ें, तो इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन इनके स्टूडेंट ने इनके जो नोट्स थे उनको कंपाइल किया और उसी को एक बुक की शक्ल दे दी। तो उसका नाम रखा गया कोर्स इन अ जर्नल लिंग्विस्टिक, जो कि 1916 में इसकी डेथ के बाद उन्होंने पब्लिश करवाई। उसमें इसने कंसेप्ट दिए थे कुछ, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। ये फ़िलासफ़र जो है इसको भी उसने डिस्कस किया है अपनी बुक के अंदर, तो इसीलिए ये अक्सर जो टीचर हैं इसको पढ़ाते नहीं हैं। अब पढ़ाते हैं तो ये बुक जो करंट की नोट्स हैं बस उससे पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके डीप कंसेप्ट नहीं बताते। मैं इंशाल्लाह आपको वो सारे प्रैक्टिकल जो इसके अंदर कंसेप्ट हैं वो आपको निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, फर्डिनेंड डी सॉशर को इसने डिस्कस किया, पोस्ट सोशेरियन राइटर जो हैं उनको डिस्कस किया जो उसके फॉलोअर थे। उसके बाद मज़ीद ये अल्थूज़र एक राइटर है। अल्थूज़र जो है वो एक फ्रेंच राइटर है, क्रिटिक है, और अल्जेरियन बोर्न फ्रेंच राइटर है। ये भी अल्जेरिया में पैदा हुआ, उसके बाद फ्रांस आ गया। आप अक्सर देखेंगे फ्रेंच और जर्मन इनके नाम फ़िलासफ़र ज़्यादा, यानी दूसरे कंट्री से भी वहाँ पे आके अल्टीमेटली वो फ़िलासफ़र बन रहे हैं। तो फ्रांस जो है उसमें वो बड़े, जैसे T.S. एलियट ने कहा था कि फ्रेंच पीपल जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं इन अप्रोच, दे आर ऑब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच, बट द इंग्लिश पीपल, T.S. एलियट ने कहा, दे आर सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच। बात याद रखिएगा, इतना बड़ा क्रिटिक है, उसने ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए इनके बारे में। अल्थूज़र जो है 1918 में पैदा हुआ और 1990 में इसकी डेथ हुई है फ्रांस में। अल्थूज़र अल्जेरियन बोर्न फ्रेंच फ़िलासफ़र है। अल्थूज़र ने जो कंसेप्ट दिया था आइडियालॉजी से मतलब, उसने कहा कि एक आइडियालॉजी जो है वो ऐसे फॉर्म होती है कि उसमें मीडिया, उसमें रिलीजन, हमारे स्कूल ऑफ थॉट, हमारे जो मकबे फ़िक्र, ये सारे मिल के पेरेंट्स और हमारे इलाके, ये सारे रीजन, कंट्री, स्कूल, मदरसे, उसके बाद मीडिया, ये कहता है कि कोवर्टली दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस, दे आर चेंजिंग आवर थॉट्स। एक होता कोवर्ट, एक होता ओवर्ट, एंड दे आर कोवर्टली चेंजिंग आवर आइडियालॉजी। उसने कहा ये हमारी कोवर्टली होता है मुख्फी तौर पर, छुपे हुए, पता नहीं चलता, ऐसे कोई छुपी हुई चीज़, हमारी चीज़ें बदल रही है, हमारी आइडियालॉजी। यू वॉच BBC, यू विल चेंज टू ग्रेट एक्सटेंट। You started assimilating yourself with the BBC, listening to the BBC and CNN and the American news. Your ideology will be changed because the program you watch, the analysis you watch, and all will added up will change your ideology. तो बड़ी हद तक हमारा कल्चर, हमारा मीडिया, हमारे सराउंडिंग, हमारे स्कूल ऑफ थॉट, हमारे पेरेंट्स और हमारे मदरसे, ये बहुत सारी चीज़ें कहता है क्वार्टरली हमारी आइडियालॉजी पे असरअंदाज होती हैं। उसने उसको बड़ा डीपली स्टडी किया, तो कैथरीन बेल्से इसकी आइडियालॉजी को भी देखती है। उसके बाद स्टडी करती है रोनाल्ड बार्थ का कंसेप्ट जो है वो भी डिस्कस होता है सिमोटिक से रिलेटेड।
सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या है, सिग्निफायर और सिग्निफायर का कंसेप्ट उसने भी दिया। सिमोटिक होता है साइन की लैंग्वेज। जी, किसी को प्रॉब्लम? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही? एम आई ऑडिबल टू यू? जस्ट लेट मी नो। जैक डेरिडा का कंसेप्ट जो है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर। जो 1980 में उसने बुक लिखी है क्रिटिकल प्रैक्टिस, उसके 6 चैप्टर हैं, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। जो ये पढ़ गया उसको डीकंस्ट्रक्शन भी आ जाएगी, उसको स्ट्रक्चरलिज्म भी आ जाएगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी आ जाएगा, अल्थूजर का कंसेप्ट भी आ जाएगा, फर्डिनेंड डी सॉशर का कंसेप्ट भी आ जाएगा, लैंग, प्रॉल, सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक, सब मैं आपको समझा दूँ। सिंटैग्मेटिक रिलेशन क्या होता है, पैराडिग्मेटिक रिलेशन क्या होता है, लैंग क्या होता है, प्रॉल क्या होता है, सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है। सो आई विल टीच यू ऑल। तो ये सारे फिलासफर जो हैं, जैक डेरिडा, ही हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ही वाज अ जू। तो हम इसके भी फिलासफर को, इस फिलासफर के कंसेप्ट को भी देखेंगे। जी, किसी का मैसेज आया है। ये किसका मैसेज? सैरिश कौन है? जी, देयर इज अ मैसेज, आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग। ओके, तो हम डीकंस्ट्रक्शन को भी देखेंगे कि व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन। अगर एक मिसाल वो कहता है कि हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्शन में डेफर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, डिफरेंट। मिसाल के तौर पर अगर एक पोएम है, उसमें अगर वाइट और स्नो और इस तरह की चीज़ों पर डिस्कस किया गया है, हम देखेंगे यहाँ पे, मैं डिस्कस करूँगा एक पोएम आपके साथ। अगर कहता है कि उसमें वाइट, स्नो और इस तरह की, तो ये चीज़ें होती हैं डेथ की अलावा। तो जब डेथ कहता है डिस्कस होगी, तो वो फिर डिस्कस क्या कर रहा है, उसके उल्ट जो बनेगा मीनिंग, वो लाइफ बनेगी, यानी डेथ, लाइफ, गुड, बैड, इवल, गुड, ठीक है, गुड, बैड, उसके बाद डे, नाइट, लाइफ, डेथ, और इस तरह कहता है हर चीज़ को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफर। जब हम इस तरह कहता देखेंगे चीज़ों को, तो फिर हम नए मीनिंग निकाल सकेंगे। अभी एक पोएम जो है उसको हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, छोटी सी पोएम है, उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैंने थोड़ा सा मिसाल दे दी कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो एज अ होल चीज़ को देखता है। वो कहता है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। फर्डिनेंड डी सॉशर ने कहा था कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम है, और वाकई लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज के अंदर, और ये एक सिस्टमेटिक एक स्टडी है, उसमें बहुत सारे सिस्टम छुपे हुए हैं, एक सिस्टम नहीं है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, इसमें फोनोलॉजिकल सिस्टम है, और इसके अंदर आप उसके बाद सिमेंटिक सिस्टम है, प्रैग्मेटिक सिस्टम है। तो लैंग्वेज साउंड, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। साउंड के अंदर हम स्टडी करते हैं फोनेटिक फोनोलॉजी, स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं सिंटैक्टिक, और उसके अलावा जो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, सिंटैक्स, और इस तरह सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद मीनिंग में हम देखते हैं सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक, कि एक चीज़ का सिमेंटिक मीनिंग क्या है, और प्रैग्मेटिक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, और लिटरल मीनिंग क्या है, डिनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग को देखा जाता है। तो ये सारे फिर इसके आगे फिर बहुत लिंग्विस्टिक जो है वो बहुत वसी है, लैंग्वेज बहुत वसी है। यानी उसने जो कंसेप्ट दिया था, उसने एक जर्नल लिंग्विस्टिक का कंसेप्ट दिया था, और उसके बाद फिर लिंग्विस्ट बाद में आते गए, जैसे आपने सुना होगा नाम उसका, स्किनर का और पियाजेट का, डिफरेंट थीरीज आती गई लैंग्वेज से रिलेटेड। इवन नोम चॉम्स्की जो अभी तक जिंदा है, तो नोम चॉम्स्की का जैसे कंसेप्ट है, तो इस तरह इनेट थीरी है, बहुत सारी थीरी। उसके बाद एक लैखान, LACAN, लैखन से कहते हैं, लैखन का कंसेप्ट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। ये सारे राइटर जो हैं मेरे माइंड में हैं, आई विल टीच यू। अच्छा जी, पहला जो कंसेप्ट है वो देखें जो उसने क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर दिया, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। वो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात करती है। इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्रिटिसिज्म, कॉमन सेंस highlight the Balsoy view of the different theory of criticism and their effect in literature. She discusses the merit and demerit of the common sense, critical literary criticism, and propound that the emphasis that shift from the writer. इस पहले चैप्टर के अंदर वो बताती है कि how we get common sense,
ये कॉमन सेंस कहती कैसे हम गेट कर सकते हैं। कॉमन सेंस का मतलब है कि व्हेन यू स्टडी एनी राइटर यू कांट स्टडी विदाउट द बायोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द राइटर। वी नीड जो भी लिटरेचर लिखा जाता है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, लिटरेचर जो भी लिखा जाता है वो रिफ्लेक्शन होता है लाइफ का। तो जब लिटरेचर कहती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होती है, तो वो जो लिख रहा होता है वो भी कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल व्यू भी उसके अंदर लिख रहा होता है। मिसाल के तौर पर जॉन कीट्स मोहब्बत करते थे फैनी ब्राउन से, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, फैनी ब्राउन ने धोखा दे दिया। तो चाहे वो जितना भी नेगेटिव कैपेबिलिटी और जितना भी अपने आप को दूर करे, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर, क्योंकि वो अफेक्टेड था प्यार से, तो उसने क्या, अब एंशियंट और हेलेनिस्टिक जो नॉलेज है या एंशियंट ग्रीक का नॉलेज जो है उसमें वो ड्यूरेबिलिटी फाइंड कर रहा है कि वो कहता है कि रेजोल्यूशन जो है ना, वो जो रेजोल्यूट है कोई चीज़ अगर पक्की है तो वो कहता है कि वो एंशियंट चीज़ है। जैसे ग्रेशियन अर्न को वो देखता है तो कहता है उसमें एक लवर है, वो अपनी ब्लवर के लिए पाइप बजा रहा है, कहता है कि तुम बहुत अच्छा पाइप बजा रहे, दुनिया आएगी दुनिया जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो स्वीट सॉन्ग्स जो हैं वो कहता है कि लोग महसूस करेंगे, सुन नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर करेंगे। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, जॉन कीट्स है। उसने कहा कि ये सामने जो मुझे नज़र आ रहा है, ये जो लवर है इसके पैशन कभी कम नहीं होते, ये जो लवर अपने लवर को देख के हंस रही है, इसके पैशन, दुनिया की हर चीज़ जो है वो बदलती है, किसी को भी दवाम हासिल नहीं है, किसी को रेजोल्यूशन नहीं है, कोई चीज़ एक चीज़ पर कांस्टेंट नहीं रहती। ब्यूटी है तो वो एक थोड़ी देर के लिए, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि ब्यूटी इट इज़ अ ट्रांजिटरी थिंग, इट चेंजेस। एक बहुत खूबसूरत जो शख्स होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम सुलिड नाइट में बदल जाता है, ऐसे जैसे कोई तारीख नाइट होती है उस जैसा मुंह पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, टोटली चेंज। सो दिस वर्ड इज ट्रांजिटरी, इट हैज़ टू बी चेंज्ड। तो फिर राइटर जो होते हैं वो क्या, उनका रिफ्लेक्शन जो है लिटरेचर में आ जाता है। तो वो कहती कितना भी कोई राइटर बचे, उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो आ जाती है। जब आप पर्सनल लाइफ को स्टडी करते हो, राइटर की बायोग्राफी, उसकी लाइफ, उसके इन्फ्लुएंसेस, कहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुआ, क्या उसने पढ़ा, क्या उसने लिटरेचर पढ़ा, कैसे लोगों से मिला, तो ओवरऑल व्हेन यू स्टडी यू गेट हिस्टोरिकल सेंस। तो आपको हिस्टोरिकल सेंस आ जाती है कि उसने क्या पढ़ा, किससे इन्फ्लुएंस हुआ, क्या क्या चीज़ें। तो वो कहती है कि दैट्स हाउ यू कैन गेट हिस्टोरिकल सेंस, कॉमन सेंस उसने कहा, इसको कॉमन सेंस का उसने नाम दिया। और उसके बाद वो इम्फेसाइज करती है कैसे कि एक राइटर, पहले राइटर के अंदर लोग मीनिंग्स स्टडी करते थे कि दे फाइंड इन राइटर्स बायोग्राफी व्हाट इज़ द मीनिंग। मिसाल के तौर पर मैंने शेक्सपियर पढ़ना तो शेक्सपियर की लाइफ शुरू कर दूँ पढ़ना, मैंने जॉन कीट्स को पढ़ना तो जॉन कीट्स की थॉरोली लाइफ पढ़ लूँ, मुझे काफ़ी सारे मीनिंग जो है वो समझ आए। वो कहती है कि कैसे शिफ्ट हो गया है, कैसे लैंग्वेज डेवलप हो गई है, कैसे लोग जो हैं अब वो राइटर पे इन्हिसार नहीं करते। वो कहते हैं जी एक पीस ऑफ लिटरेचर उसको क्लोज स्टडी करो और उसे आइसोलेट करके राइटर की, जब इवन के रोनाल्ड बार्थ ने क्या कहा, उसने कहा डेथ ऑफ द राइटर, डेथ, राइटर मरता है तो रीडर जो है वो जिंदा होता है। अगर रीडर आप राइटर को हैवी रखेंगे अपने ऊपर और राइटर में ही मीनिंग तलाश करेंगे, तो फिर कहता है रोनाल्ड बार्थ ने कहा यू कांट गेट मीनिंग, let the reader get meanings, what is in the text, so reader will get himself what is in the text, when writer will die, death of the writer उसने लिखी थी बुक रोनाल्ड बार्थ। वो कहता है जब रीडर मरता है तो राइटर जो जब राइटर मरता है तो रीडर बॉर्न होता है, रीडर जो है फिर वो कोई चीज़ उसमें से तलाश कर सकता है। अगर रीडर को राइटर को हैवी रखेंगे यू विल नॉट गेट मीनिंग। जब आपने लिख दिया, आपका लिटरेचर जो है वो एक आइसोलेट हिस्सा बन गया, वो एक लिटरेचर का जो लिटरेचर की ट्रेडिशन है उसका हिस्सा बन गया, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहुत सारे राइटर क्रिटिक आएंगे, वो कहेंगे नो ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, एक बंदे ने इतनी मेहनत करके लिखा, आप कैसे उसे आइसोलेट कर सकती हैं, उसका इन्फ्लुएंस जो है। यही बात वो कर रही है पहले चैप्टर में, कहती है कि राइटर जो है ना कुछ ना कुछ पर्सनल चीज़ें डाल देता है, तो उसको जब हम थॉरली स्टडी करते हैं, उसकी बायोग्राफी, उसकी लाइफ, तो हमें पहले तो बात है कि कॉमन सेंस आ जाती है। तो कैसे कहती है, शी स्टडी एंड शी डिस्कसेस द इन फर्स्ट चैप्टर हाउ मीनिंग्स
हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम राइटर टू ऑथर, यानी राइटर टू बुक वर्क एंड देन अल्टीमेटली टू द रीडर। कि पहले तो मीनिंग थे राइटर के पास, लोगों ने ये कहा भाई हमें सिर्फ राइटर को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। फिर मीनिंग शिफ्ट होके किस में आ गए, बुक के अंदर, चलें जी उसका जो बुक है उसको क्लोजली स्टडी करें। फिर अल्टीमेटली वो रीडर के यहाँ चले गए। जब न्यू क्रिटिसिज्म आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे आई ए रिचर्ड ने क्या किया तो बहुत सारे लोगों को एक पोएम बांट दी, बहुत सारे स्टूडेंट, और हर किसी की इंटरप्रिटेशन जो थी वो डिफरेंट थी उसके बारे में। जो क्रिटिकली उन्होंने वैल्यूड किया उन्होंने हर किसी ने डिफरेंट कर दिया। उसने कहा जी अल्टीमेटली जो है ना अब मीनिंग शिफ्ट होके कहाँ आ गए, अब आ गए रीडर के पास। पहले राइटर के पास थे, उसकी बायोग्राफी स्टडी की जाती, उसकी लाइफ, उसके इन्फ्लुएंस, वो कहाँ से इंप्रेस है, उसके एक्सप्रेशन, इंप्रेशन, एवरीथिंग यू स्टडी इन अ वे टू गेट मीनिंग। देन जी आप बुक के ऊपर आ गए, चलें जी बुक को क्लोज स्टडी करें। फिर यहाँ से भी शिफ्ट होके आप अल्टीमेटली रीडर के ऊपर आ गए। दूसरे चैप्टर में वो बताती है कैथरीन बेल्से that explored the nature of the language deep and how the language everything literary criticism. She discusses the status of language, society and literature and coexistence in language and thoughts and how they relate to each other. इसमें वो डिस्कस करती है कि सोसाइटी, थॉट और ये लैंग्वेज का क्या रिलेशन है। एक सोसाइटी, एक कल्चर, एक लिटरेचर के ऊपर कितना अफेक्ट करता है, किसी लैंग्वेज के ऊपर कितना अफेक्ट करता है, ये आप अपनी लैंग्वेज से जानते हैं। So talk about the language you speak. You live in a Punjabi, you started speaking Punjabi language, and you know that whenever we living in certain community, we are getting lot of things from our surrounding. We are getting their culture, we are getting their interaction, we are getting what kind of language they speak, how they behave, how they interact, how they react. हम बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी से सीख लेते हैं, उसने इस दूसरे चैप्टर के अंदर क्रिटिकल प्रैक्टिस में ये डिस्कस किया कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इन द लाइफ ऑफ पोस्ट सोशेरियन मेथड। सो डेफिनेटली हियर सोशल विल बी डिस्कस। अब फर्डिनेंड डी सोशल का जो कंसेप्ट है वो भी उसने डिस्कस किया। तो जैसे जैसे वो बड़े बड़े राइटर को अंदर डालती जाएगी, उसका जो एक तो टॉपिक वसी होता जाएगा, एक जो रीडर जो है, जो आम बंदे हैं, उनकी समझ से दूर होती जाती है बात। चूँकि वो डिफ़िकल्ट राइटर है तो उसका जो उसको अंडरस्टैंड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ लैंग एंड प्रॉल, लिख लें। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सोशल, इट्स माई सब्जेक्ट एंड आई लव दिस सब्जेक्ट। लिंग्विस्टिक इज़ माई सब्जेक्ट एंड आई लव दिस सब्जेक्ट। I've been teaching since 2009, स्पेशली लिंग्विस्टिक। तो इसको मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह बताऊं। लिंग्विस्टिक के अंदर जो फर्डिनेंड डी सोशल का कंसेप्ट है, लिख लें, लैंग और पेरोल का उसने कंसेप्ट दिया। लैंग है कि जो नॉलेज है किसी लैंग्वेज का, द नॉलेज यू एक्वायर, द रूल, रेगुलेशंस ऑफ द लैंग्वेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, हाउ यू फॉर्म सेंटेंस, how you use and combine the phrase structure and the knowledge, everything you acquired about language, it is a lang. लैंग वो रूल्स हैं, वो लैंग्वेज के वो सारे मेथड हैं, वो सारे लिक्सिकल वर्ड्स आ जाएंगे, सारा नॉलेज जो है लैंग्वेज का वो उसका लैंग है। राइट प्लीज। एंड प्रोल मीन when you apply these all rules in a practical field to produce something, so this is a prole. प्रोल को उसने कहा कि वो जो आप परफॉर्मेंस देते हैं किसी लैंग्वेज की ऑन द बेस ऑफ योर लैंग, लैंग में जो आपने नॉलेज हासिल किया लैंग्वेज का, व्हेन यू अप्लाइंग इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट, यू आर इवन स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, वट एवर यू आर यूजिंग विद द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड इन अ लैंग, इट विल बी योर प्रोल। जब आप उसे प्रैक्टिकल पर्पस में उसके ज़रिए चाहे राइटिंग में यूज़ करें, चाहे वो स्पीकिंग में, परसेप्शन में, एवरीथिंग, दैट विल बी अल्टीमेटली नोन एज योर प्रोल। लैंग और प्रोल का कंसेप्ट दिया था फर्डिनेंड डी सोशर ने। अ कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक दैट वाज रिटन राउंड अबाउट 19 कोई है 1918 में उसकी डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद ये पब्लिश किया था उसके स्टूडेंट, तो उसके अंदर उसने ये कंसेप्ट दिया। दूसरा पॉइंट लिखें, ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड, क्योंकि ये भी इसके अंदर डिस्कस होता है।
व्हाट इज द सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफायर क्या होता है। सो इफ एनीवन among us you know something about signifier and signifier, I'll be very happy to have answered by your side. What is difference between signifier and signified meaning? If you people know something about the signifier and signified meaning, please share your idea. What do you say, what is signifiers and what is signified meaning? So signified means कि हमने ये दिया हुआ। जी प्लीज शेयर करें किसी के पास नॉलेज है तो। और signified का मीनिंग है कि अहमियत वाला। नो, ये तो कोई मानी नहीं है। उसने जो उस टेक्निकल लैंग्वेज में जो आपको उसने लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज में उसने बताए हैं, हमने वो बताने हैं। अब किसी ने फर्डिनेंड डी सोशल को पढ़ा है तो वही बताएगा, अदरवाइज नो बॉडी कैन टेल। कोई और सबा रशीद यहाँ पे, सबा क्या नाम है, हमारी एक पार्टिसिपेंट है। व्हाट इज signify? The word we use is sign, and the mental image we have of that word. For example, if you talk about a dog, okay? Yes. The word we use dog. Dog is a sign, and the mental image we construct of the sign is dog, and the little dog we see in front of us is signified. Sign, signifier, and signified. Is it right? काइंडली कंसेप्ट जो है ना बच्चों को समझ आना चाहिए कोई इस तरह का बेसिक मतलब ये होता है कि बच्चों के अब किसी बच्चे से पूछ ले उसे नहीं समझ आया होगा कि व्हाट शी इज व्हाट यू आर। देखिए ना, जब हमने एक लफ्ज़ बोला डॉग, इस लफ्ज़ को हम कहते हैं साइन। इस वर्ड की कहते हैं साइन कहते हैं। यस, कि इस लफ्ज़ का कोई ना कोई इमेज हमारे दिमाग के अंदर बना है। अच्छा, इस तरह का होता है आटा के, इस तरह की बॉडी, इस तरह का उसका उस तरह की शक्ल है, और जो इस दिमाग में बना है ना वो सिग्निफायर है। और वो असल कुत्ता जो मौजूद के बारे में कहा गया है वो आप देखिए कि वो सामने बैठा हुआ है, तो वो जो सामने बैठा हुआ है वो सिग्निफाइड है। उसका मेंटल लिंक बना है वो सिग्निफायर है, और इसलिए जो लफ्ज़ यूज किया है वो साइन है। अब जो बताएंगे मैंने नहीं बताया ये भूल। okay, let's we discuss because these things are very ambiguous. Lot of people they are still having ambiguous knowledge about this complex term. So signifier mean please write it down. Signifier mean form, sound and the construction of words. ये आपका signifier है, यानी एक construction of words जो है या जो sound है या कोई form है, it is what signifiers. But the mental image you see that comes in your mind, that is a signified. So like and you know, now I want to teach you what is deconstruction. Now you people will learn what is deconstruction. उसने कहा था कि एक लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है। यानी एक चीज़ जो है ना सिग्निफायर है, जैसे कोई फॉर्म है या साउंड है, मैं कोई साउंड प्रोड्यूस करता हूँ। अब इस साउंड का मेरे यहाँ मतलब कुछ और है, किसी और के यहाँ कुछ और है, किसी और के यहाँ कुछ और है। लेकिन बाद में जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान जो रिलेशन है ये मल्टीपल वे से इंटरप्रेट किया जा सकता है। यू कैन इंटरप्रेट इट विद डिफरेंट वेज। अब एक साउंड मैं कोई प्रोड्यूस कर देता हूँ, आप कुछ और समझ आए, आप कुछ, ये कहता है कि ये जो सिग्निफाइड जो आएगा इनका, दैट विल बी अंडरस्टूड विद डिफरेंट यू कुड से अंडरस्टैंडिंग। ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सिग्निफायर्स का मतलब लिख लें कोई साउंड, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, कोई फॉर्म। लेकिन सिग्निफाइड वो जो मेंटल इमेज बनेगी आपके अंदर। अब मंकी से अगर आपको किसी ने बता रखा है कि मंकी जो है वो भैंस को कहते हैं, तो आपके क्या आएगा मीनिंग, मेंटल इमेज क्या भैंस बन जाएगी। अंडरस्टैंड? सिग्निफायर तो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये मंकी है, मंकी जो है वो भैंस को कहते हैं। आप यकीन माने आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
मैंने जब तक लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ा था तो मैं ये समझता था कि लैंग्वेज जो है वो इंस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी है, इंस्टिंक्टिव इंसान जब पैदा होता है तो साथ ही लेके आता है, बट इट इज़ नॉट इंस्टिंक्टिव। इंसान जी, वेलकम बैक। Hope you are all present. Present, sir. Okay, welcome back. Are you listening to me? My voice is audible. Kindly let me clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So signified and we are discussing about signified and signifier. मैंने कहा कि साउंड, आप कह लें कि कोई साउंड फॉर्म और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, ये आपके क्या हैं, ये सिग्निफाइड, ये सिग्निफायर्स हैं। अब ये जो सिग्निफाइड हैं, ये इन्होंने अल्टीमेटली आपका क्या फॉर्म करना है, सिग्निफाइड। अगर लेट्स सपोज कि आपको किसी ने गलत सिखा दिया, भाई ये जो लेट्स सपोज स्टेपलर जो है ना, इसको कहते हैं कि ये पेज है, यानी ये एक पेज है।
आप लोगों को किसी ने स्टेपलर ये सिखा दिया तो आपके जो सिग्निफाइड आएगा इसका वो पेज पेपर आ जाएंगे स्टेपलर जब भी बोलो। तो वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ये क्या है, एक तो उसने ये फाइंड किया कि ये आर्बिट्ररी है। सो द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड इट इज़ आर्बिट्ररी। ही हु डिस्कवर्ड? फर्डिनेंड डी सॉशर। बात तो उसने बहुत अच्छी की कि जो चीज़ों को हमने नाम दिए हुए हैं ये नाम, अब मॉन्की को ये पता नहीं कि उसका नाम मॉन्की है। अगर सारे लोगों की ज़बान जो है वो सेम होती तो अगर मैं यहाँ पे मॉन्की को मॉन्की कह रहा हूँ, यानी हम बंदर कहते हैं वो मॉन्की कहते हैं, और फ्रेंच और पुर्तगीज और डिफरेंट जो लैंग्वेज है उसमें सब में एक मॉन्की कहा जाता। इट मीन कि लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो ब्लैंक स्लेट की तरह आता है। यू कैन राइट वट एवर यू वांट। और जिसको नोम चॉम्स्की ने लेटर क्या नाम दिया, लेड, कि उसके अंदर डिवाइस तो लगी हुई है एक बच्चे के लैंग्वेज सीखने की, यूनिवर्सल ग्रामर हर किसी की कहता सेम होती है। यूनिवर्सल ग्रामर की जो कैपेबिलिटी है या लैंग्वेज सीखने की कहता जो कैपेबिलिटी है वो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। आप जोन सी भी उसे सिखा दें, जो उसके सामने आप सिग्निफायर और सिग्निफाइड बताते जाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म करता जाएगा। ये तो कंसेप्ट था सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग का। अब इसके बाद जो लेटर आएंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, वो कहते हैं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है मीनिंग, ये हम इसको एक सिग्निफायर का जो सिग्निफाइड मीनिंग है वो 10 भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे रेड से मतलब खतरा, किसी जगह रेड से मतलब खुशी, किसी जगह से रेड के मतलब यस, किसी जगह पे रेड से मतलब जो है वो बाउंड्री एरिया, यानी हर जगह पे मीनिंग्स जो हैं वो कहता है कि सिग्निफाइड मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये डीकंस्ट्रक्शनलिस्ट जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी होगी उसका मेन पॉइंट जो है वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। होप यू गॉट द पॉइंट। हम एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे डीकंस्ट्रक्शन की। मैं आज ही इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं थोड़े से ये पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लूँगा, साथ साथ जो चीज़ें आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग जो है ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो वो बताए मुझे। इफ़ एनी स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग मुझे बताएं, मैं दोबारा फिर बता। हाँ जी बताएं सर। सिग्निफायर और सिग्निफाइड तो समझ आया, लेकिन ये आपने बताया ना डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी में उनके क्या सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। आप उसको रिपीट करेंगे? मैं बता देता हूं उनके अकॉर्डिंग सिग्निफायर मैं बता देता हूँ मेरी बात में। आप मतलब इस तरह के एक सिग्निफाइड जो मीनिंग है वो किसी के और हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को बताया गया, मैंने पहले भी मिसाल दी कि एक यानी मंकी का मानी किसी को बताया गया। सर मैं बोलूं, इफ यू डोंट माइंड, मैं बोलूं, मैं इनको क्लियर करूं? चलें आप बताएं फिर मैं बता। अच्छा आपने मुझे ये बताना है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ कैन यू रही? हियर मी? हेलो जी मेरी आवाज आ कैन रही यू हियर है। मी? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज किसको नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही या साइमा को नहीं आ रही? साइमा आपके नेट का मसला होगा। मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही काइंडली बताइएगा, कोई नेट का इशू। हेलो आ रही है सर आप? अच्छा चले मुझे बताने दीजिए, मैं इनको बड़े सिंपल अंदाज में बताता हूँ। देखिए एक चीज़ का मतलब जो है वो मेरे नज़दीक कुछ हो सकता है। मैं एशियन कल्चर से मुतासर हूँ या यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं किसी चीज़ को मैं कुछ और लूँगा मीनिंग, कल्चरल वाइज भी जैसे मीनिंग होते हैं। तो वो कहता है, वो बेसिकली कह रहा है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने सिखा दिया कि ये जो स्टेपलर है इसका मतलब जो है आपको कोई और बता दी चीज़, यानी उसका पेपर को कहते हैं, यानी स्टेपलर वैसे उसका नाम है, आपको पेपर बता दिया तो आपके माइंड में पेपर आ जाएगा। किसी को स्टेपलर बताया तो उसके माइंड में स्टेपलर आ जाएगा, किसी को मार्कर बताया तो उसके माइंड में वो मार्कर आ जाएगा। यानी एक ही चीज़ के मानी जो सिग्निफाइड मानिंग है वो डिफरेंट लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी एक ही मानी के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। मैं दोबारा फिर बताता हूँ, मैंने पहले मिसाल दी, जो मिसाल इधर बुक के अंदर भी दी हुई है कि एक न्यूड औरत है और उसको एक बंदा ऊपर से मारने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर है।
अब इससे आपने एक मानी तो ये ले लिया सिंपली कि भाई एक बंदा है जो रेपिस्ट है, वो उसे रेप करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो एक। लेकिन अगर हम दूसरे उसको अंदाज से इंटरप्रेट करें, यानी हम स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट से देखें, तो उससे क्या मानी आएंगे? उससे मानी आएगा ये इसका हस्बैंड है, ये कोई प्लंडर डाकू है, ये कोई रॉबर है। ये जब इसने यानी ये उस हालत में बैठी हुई थी तो इसने पहना क्या हुआ था, ये कुछ पोजीशन में थी, इसका रिलेशन क्या है, उसके कॉन्टैक्ट से भी चीज़ें देखी जाएंगी, सराउंडिंग से भी देखी जाएंगी, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है निकल आएंगी और लोग जो हैं उसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं उसे डिफरेंट तरह से देखेंगे, यानी डीकंस्ट्रक्शनिस्ट उसको डिफरेंट तरह से देखेंगे। ये है मीनिंग। यानी मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ का सिग्निफायर और सिग्निफाइड के मीनिंग जो है वो डिफरेंट इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। ये बाद में जो लेटर आए थे, इसके सोशर के बाद जो आए, फर्डिनेंड डी सोशर के बाद जो लोग आए, उन्होंने मजीद बताया। आगे देखिएगा, तीसरा चैप्टर में वो डिस्कस करती है, हाँ जी, अल्थुजर का कंसेप्ट जो है वो इसमें बताती है। थर्ड चैप्टर ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस gives a new orientations to her discussion of the critical practice. She explore and investigate Althusser perspective about the ideology. I've already told you about Althusser, according to Althusser, whatever you get ideology, it is not your own ideology. In fact, it comes through different sources, society you live in, and school you adopt, company you adopt, media you watch. So they all covertly change your meanings. They covertly influencing and changing your ideology. तो इसमें वो डिस्कस करती है तीसरे चैप्टर में कि अल्थुजर का आइडियोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में वो अपने कमेंट भी देती है। मेक श्योर कैथरीन बाल्से डिड नॉट गिव हर ओन आइडियोलॉजी और थ्योरी. शी डज नॉट गिव हर ओन थ्योरी अबाउट क्रिटिसिज्म, रादर शी डिस्कसेस अदर कंसेप्ट. ये आपको सारे जितने भी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करती है. कन्वेंशनल व्यू क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है, आथर से कैसे एक आथर से एक बुक और फिर रीडर तक बात आई है, वो सारी आपको लेकर आएगी वन बाई वन. ये तो हो गया उसका तीसरा जो चैप्टर है, इसमें उसने डिस्कस किया. हर फोर्थ चैप्टर, पांचवें चैप्टर में वो डिस्कस करती है लैकन्स मिरर फेस. उसमें स्प्लिट और कॉन्शियस सेल्फ उसमें डिस्कस करती है. दस द कॉन्शियस सेल्फ एंड द सेल्फ कॉज स्प्लिट एंड द स्प्लिट इज रिप्रेजेंटेड इन द डिस्कोर्स ऑफ द लिटरेचर. यानी इसमें वो कहती है कि स्प्लिट कॉन्शियस का जो सब्जेक्ट कंसेप्ट है वो देती है. उसमें लैकन्स मिरर एक फेस से रिलेटेड उसने एक आइडियोलॉजी दी है, एक उसका व्यू है, उसको उसने डिस्कस किया है. हियर शी हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्शियस सेल्फ and self cause and split it represented in the discourse of literature. Ultimate phase of the modern literary criticism is deconstructing. और चौथे चैप्टर में वो डिस्कस करती है, देखिएगा आखिर में वो कहती है कि जो डीकंस्ट्रक्शन है कैसे बात डीकंस्ट्रक्शन तक आ गई है. यहाँ वो डिस्कस करती है द अल्टीमेट फेज ऑफ द मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ डीकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट एंड दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ द Balze's fifth essays in the critical practice. Before going into the further, she recaps the again criticize the previous theories in the new light, and then she demands a new critical approach to the literature which must be productive and effective and related to the world in live in. अब उसने कहा कि जो सबसे प्रोडक्टिव है, सारे पिछले जितने भी मेथड है क्रिटिसिज्म के उन सारों को डिस्कस करने के बाद कहती है कोई अच्छा होना चाहिए इससे बेटर. तो वो कहती है ये जो डीकंस्ट्रक्शन मेथड है ये अच्छा मेथड है. द वर्ड डीकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप तबाह व बर्बाद कर दें किसी चीज़ को या डिस्ट्रॉय कर देना, बल्कि इसका मकसद ये है कि ये लिटरेरी एनालिसिस है. एक चीज़ को आप डीकंस्ट्रक्ट करके उससे और भी मीनिंग जो निकल रहे हैं वो आप फाइंड कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर अगर एक पोएम के अंदर सारी बात हुई है स्नो की, वाइट की, डेथ की, तो आप उससे दूसरा मीनिंग लेंगे लाइफ कि ये रिलेशन है लाइफ और डेथ के दरमियान. ये पोएम ये हम डिस्कस करेंगे, एक पोएम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. उसके बाद जनाब जो फाइनल है, द फाइनल कंक्लूडिंग चैप्टर्स इन द बुक्स she delves into deep in the realm of criticism and discuss that how meanings have been changed from author
बुक एंड रीडर, कैसे मीनिंग पहले आथर के पास थे, फिर बुक में आए, और फिर कैसे जो रीडर है वो प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्स्ट जो है वो बन गया, असल प्रोड्यूसर जो है वो अब रीडर बन गया है। अच्छा, मैं एक आपके साथ शेयर करता हूँ, हम वो पढ़ते हैं। लेट मी फाइंड, यहाँ पे अल्थुज़र का कंसेप्ट है, ये भी असाइनमेंट है, ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। एक और थी, लेट मी फाइंड, ये क्या है, कोई चीज़ शेयर हुई है आपके साथ? ये तो कुछ और ही आ गया। Let me stop this. अब कोई चीज़ आपके सामने आई है? नो सर। अब hope you have got now. Deconstruction. What is deconstruction? Simon, no, you will come to know what is deconstruction because I am going to explain from assignment. So, what is deconstruction? According to Jacques Derrida, French philosopher, explain a strategy rules for the reading, interpretation and writing. कैसे एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके उससे हमने नए मीनिंग निकालने हैं। ब्रेक डाउन, पोएम हो, कोई थीसिस हो, कोई टॉपिक हो, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उससे नए मानी निकल आएंगे। Socrates said, doubt is origin of knowledge. When you doubt on something, when you skeptic on something, you get new meaning. Doubt is the origin of knowledge. तो यहाँ पे वही हिसाब किताब है कि explain a strategy rule for writing, interpretation and writing. History of the deconstruction. René Descartes, 1596-1650, and the Friedrich Nietzsche, 1844 and 1900. ये दोनों जो फिलासफर हैं बड़े कमाल के फिलासफर हैं। If you study, you will learn a lot of knowledge. Were the pioneers in deconstruction. ये दोनों pioneers हैं इसमें। कैसे? They began to question the objective truth of language. यानी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ यहाँ मौजूद है भाई, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये दुनिया जो है इसके अंदर एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है और इसका कोई सेंटर भी नहीं है। वो कहते हैं, ये ना कहें कि ये कोई सेंटर है, वो कहते हैं कि इसको डीकंस्ट्रक्ट करें, उससे कोई नई चीज़ मिल जाएगी। दे बिगिन टू क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज। उसने कहा कि लैंग्वेज में जो नॉलेज है, एक तो पहली बात है कि हर चीज़ का सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान ही बड़ा फ़र्क है। जो मैं समझता हूँ वो आप नहीं समझते। कोई मिसाल के तौर पर साइमा कुछ समझती है, सबा कुछ समझती है, सैरिश कुछ समझती है। एक चीज़ मैं दिखाऊं तो उसके नज़दीक कल्चर वाइज बड़े डिफरेंट मीनिंग निकल आएंगे। यानी सिग्निफायर और सिग्निफाइड में ही बड़ा डिफरेंट है। और उसने मज़ीद डिस्कस किया कि इन दोनों ने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। अगर दुनिया में कहीं ट्रूथ मौजूद है तो वो रिलेटिव फॉर्म में, नॉट एब्सोल्यूट। और यही बेसिकली किसका फिर बायस बनता है, ये कंसेप्ट डीकंस्ट्रक्शन। दे बिगिन टू क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी। दिस इज आल्सो नोन एज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। दिस क्रिटिसिज्म केम आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा था ना, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन को डीकंस्ट्रक्शन को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट कर रहा था। ये बेसिकली कंसेप्ट दोनों मिलते जुलते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। दिस क्रिटिसिज्म केम आफ्टर द स्ट्रक्चरलिज्म। यानी पहले तो एक स्ट्रक्चरलिज्म चल रहा था जिसको फर्डिनेंड डी सोशर ने भी कंसेप्ट दिया था, उसके फॉलोअर भी यही फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम राइटर ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई एब्सोल्यूट और कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, आप स्ट्रक्चर से मीनिंग कैसे देखते हो? एक स्ट्रक्चर से बाहर आके आप उसके नए मीनिंग निकाल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म केम आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ जी साइमा, यहाँ तक समझ आई जो मैं बातें कर रहा हूँ, ताकि मैं फिर आगे चलूँ? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड देखें। हाँ जी,
देखें जी, दिस इज द प्रोल्यूड और टू डिकंस्ट्रक्शन. It is a science that seeks to understand how systems work. In this case, language, the structure of language come from human mind. जो चीज़ ह्यूमन माइंड में है वो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों का मिक्सचर है. उसमें कोई चीज़ मौजूद है तो वो क्या है, वो रिलेटिव फॉर्म में है. दे कैन बी ट्रूथ एंड दे कैन नॉट बी ट्रूथ. यानी कोई चीज़ भी उन्होंने कहा जी एब्सोल्यूट नहीं है. दुनिया के अंदर सच्चाई अव्वल तो मौजूद ही नहीं, अगर मौजूद है तो वो रिलेटिव फॉर्म में है, नॉट एब्सोल्यूट. और यही उसका बायस बना जो मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का. लें जी नेक्स्ट स्लाइड. फर्डिनेंड डी सॉशर. फर्डिनेंड डी सॉशर का नाम याद रखें, ये आगे लिंग्विस्टिक आपने पढ़नी है और ये उसमें भी डिस्कस होगा. Looked at the language diachronically and synchronically. He has given the concept of language synchronically and diachronically. Synchronically का मतलब होता है you study language with the present contemporary period में जब आप स्टडी करते हैं. And when you study from 2000 to 2020, यानी आप 2000 से 2002 तक 2010 तक स्टडी कर रहे हैं तो ये डायक्रॉनिकली है. इसको क्या कहते हैं, डायक्रॉनिक. सो लुक एट द लैंग्वेज डायक्रॉनिकली, कि उसने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज को देखा है कि हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आई हैं लैंग्वेज. ही ट्रेस द वर्ड ओवर टाइम लुकिंग फॉर द लैंग्वेज इन अ साउंड्स एंड मीनिंग. उसने साउंड और मीनिंग को स्टडी किया. नाम है फर्डिनेंड डी सॉशर. स्विट्जरलैंड का रहने वाला था. स्विस बोर्न फ्रेंच फिलासफर जाना जाता है फर्डिनेंड डी सॉशर. रूल ऑफ लैंग्वेज. दीज रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर डेवलप्ड बाय फर्डिनेंड डी सॉशर. फर्डिनेंड डी सॉशर ने जनाब ये जो रूल्स हैं ये डिफाइन किए. दीज रूल्स वर डेवलप्ड बाय फर्डिनेंड डी सॉशर. लैंग्वेज इज मेड सेट ऑफ रूल्स नोन एज दिस. मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज लैंग. हाँ जी, व्हाट इज लैंग, कि जो नॉलेज है लैंग्वेज का वो सारा आपका लैंग है, जो सेट ऑफ रूल हैं. ठीक है, जो डीप स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है, डीप स्ट्रक्चर है. डीप स्ट्रक्चर मीनिंग होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर होता है. लैंग्वेज का क्या होता है, एक डीप स्ट्रक्चर होता है और एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है. यानी आप डीप स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सरफेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं. डीप स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पैसिव एक्टिव, और उसके बाद आप उसको नेगेटिव, इंट्रोप्टिव, इम्पेरेटिव, कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं. यानी असल उसका स्ट्रक्चर वही वो क्या उसे कहते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, उसकी बुनियाद पे आप जितने मर्जी सरफेस स्ट्रक्चर बना लें. दो स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज के, एक डीप, एक सरफेस. सो लैंग्वेज इज अ मेड सेट ऑफ द रूल नोन एज दिस. तो ये जो जितने भी रूल है, नॉलेज है लैंग्वेज का, वो आपका लैंग है. उसके बाद पेरोल. जनरल रूल्स ऑफ लैंग्वेज अप्लाइड. अप्लाइड का मतलब होता है इस्तेमाल, प्रैक्टिकल इस्तेमाल में जब लाते हैं. बाय मेंबर इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. जब वो आपने वो रूल सीख लिए, सारा नॉलेज लर्न कर लिया, जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्मिंग लैंग्वेज, इट इज नोन एज पेरोल. साइन ही depicted language as a set of signs that come into part and signifier and signified. वही चीज. नेक्स्ट स्लाइड देखें. सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर्स इन अ डीकंस्ट्रक्शन. अब बात वही आएगी जो मैंने आपके साथ पहले की है. देखें, व्हाट इज सिग्निफायर्स. द रिटन एंड द साउंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ दैट मेक अप अ वर्ड सिग्निफाइड. यानी सिग्निफाइड द रिटन एंड साउंड कंस्ट्रक्शन दैट मेक्स अप द वर्ड. यानी किसी चीज़ की साउंड, कोई लफ्ज़, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, ये साउंड की शक्ल में हो सकती है, फॉर्म की शक्ल में हो सकती है, जो आपके माइंड में है, जो आपके सामने है. और वो जो आपके सामने है उसने एक इमेज बनाना है, आपके मेंटल इमेज बनाना है. उस शक्ल ने, फॉर्म ने, साउंड ने कोई एक मीनिंग देना है उसको, उसकी इमेज आपके सामने आ जाएगी, वो उसका सिग्निफाइड है. सिग्निफाइड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. जो इसके बाद मीनिंग आएंगे, मैं रेड दिखाऊंगा तो आप कहें नो भाई रेड जो है वो बॉर्डर एरिया, रेड जो है ये सिंबल ठीक नहीं. आपको मीनिंग, क्योंकि आपकी सोसाइटी में रेड जो है, रेड पे स्टॉप हो जाना है. रेड जो है हमारे नज़दीक डेथ की अलामत है.
लेकिन कहीं पे रेड जो है चाइना के अंदर आपने अगर मैट्रिक के अंदर चाइनीज न्यूज ईयर पढ़ा हो तो कहते हैं रेड जो है वो एक वो जिंदगी की अलामत है। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफायर और सिग्निफाइड का मतलब आपको समझ आया होगा। साइमा गौर से सुनिएगा। मैंने आपको रेड दिखाया तो आपने कहा इसका मतलब स्टॉप हो जाना, डेथ की अलामत है। मैंने रेड चाइना वालों को दिखाया, उन्होंने कहा जिंदगी की अलामत है। मैंने किसी और को रेड को दिखाया, उसने फिर कह दिया कि यार ये तो कोई अजीबोगरीब सा कलर है। किसी और को दिखाया, उसके लिए जिंदगी रोमांस की अलामत है। किसी और को दिखाया, उसने कहा कि यार ये स्टैग्नेंट की अलामत है। यानी जैसे जैसे आपके सिग्निफाइड वो देता जाएगा मीनिंग, आपको मीनिंग जो आपने सोसाइटी ने या जहाँ से भी आपने एक्वायर किए हुए हैं वो आपके सामने बन जाएंगे उसके। तो अल्टीमेट जो उसका मीनिंग आपके माइंड में आता है, दिस इज अ सिग्निफाइड। द मीनिंग ऑफ द वर्ड का जो वर्ड दिखाया तो उसका जो मीनिंग आपके माइंड में बन गया, मेंटल इमेज जो बन गई, जो आपके माइंड ने उसको फॉर्म कर लिया, दैट विल बी सिग्निफाइड। आगे डीकंस्ट्रक्शन, अब वो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शन लगेगी। लुक एट द एम्बिगुइटीज इन सिग्निफायर्स एंड स्टेट दैट देयर कैन बी मैनी डिफरेंट सिग्निफाइड मीनिंग्स फॉर द सिंगल सिग्निफायर। एक सिंगल सिग्निफायर के, साइमा देखें गौर से, एक सिंगल सिग्निफायर के मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट वन मीनिंग। एक मीनिंग नहीं। मैंने जैसे आपको चाइनीज़ की मिसाल दी, पाकिस्तानियों की या दीगर और लोगों की मिसाल देता हूँ। मज़हब के लिहाज से कोई और मीनिंग हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, कल्चर्स के लिहाज से मीनिंग और हो सकता है। कहता है एक सिग्निफाइड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। एक सिग्निफायर के सिग्निफाइड मीनिंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ये जो डीकंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे हेल्प करती है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग। बाइनरी अपोजिशन, हम जब किसी पोएम को एनालाइज करेंगे, अब उस पोएम में अगर डीप, डेथ और इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं तो हम देखेंगे कि ये किसके साथ, हर चीज़ बाइनरी रिलेशन में देखते हैं। डीकंस्ट्रक्शन में देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, दिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म यूज द बाइनरी अपोजिशन। हर चीज़ को किस में देखेगी? डीकंस्ट्रक्शन। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीकंस्ट्रक्शन, this literary criticism uses the binary oppositions to look what is not in a story। एक स्टोरी आप देख रहे हैं, बार बार डेथ का जिक्र हो रहा है, बार बार डेथ के सिंबल यूज हो रहे हैं, तो हम उसको रिलेट करेंगे, दिस इज द स्टोरी बिटवीन द डेथ। मेन थीम किसके दरमियान है? मेन रिलेशन किससे? डेथ एंड लाइफ। Of the two part of the binary opposition, there is the dominant and oppressed are the non-dominant, day and night। Jack Derrida said, through body people say soul can control body, he says that through body you can hold soul। कहता है कि बॉडी भी तो है ना, ये आप सोल की बात करते हैं जी, सोल जो है वो बॉडी को चलाती है। वो कहता है अगर बॉडी ना हो तो सोल कहाँ आएगी, समाएगी कहाँ? उसने कहा थ्रू सोल यू कैन कंट्रोल, यू कैन कंटेन योर सोल। नेक्स्ट, अदर इन्वॉल्व। हाँ जी, दूसरे लोग भी जो हैं उन्होंने भी इसके रिलेटेड कंसेप्ट दिया, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, सिमोटिक। सिमोटिक भी एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है और हम इसको स्टडी करते हैं, सिमोटिक। रोनाल्ड बार्थ, रोनाल्ड बार्थ क्या कहता है? रोनाल्ड बार्थ 1915-1980 फ्रेंच थियरिस्ट whom worked on the development of the structuralism and deconstruction। Vladimir Prop 1895-1970 Russian scholar that worked on the folk tales। Jonathan Kullers 1944 today अभी तक भी है, Cornell यूनिवर्सिटी वर्क ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। ये जी वर्क कर रहे हैं, इन्होंने वर्क किया है और कुछ कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ द डीकंस्ट्रक्शन, टेक अवे फ्रॉम द टेक्स्ट बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर व्हाट नॉट देयर। यानी हमने किस तरह फिर किसी पोएम को, किसी पीस ऑफ योनरा को अगर हमने एवेल्यूएट करना है डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट जो हैं पोएट ने इसके अंदर डिस्कस नहीं किए, हम वो निकाल के लिखेंगे, उसके रिलेट करके, जो डिस्कस हैं, जो डिस्कस नहीं है उनको रिलेट करके फिर मानी निकालेंगे। इट्स आल्सो अ वे टू डीकंस्ट्रक्ट whatever not mentioned in the poem, we'll find out, and after that we find the relation, life, death, soul, body, day, night, हर चीज़ को बाइनरी वे से देखेंगे।
बाइनरी का मतलब होता है टू। टेक्स अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, impact of deconstruct, take away from the text because you looking for what not there, make literature seem like the word play, हम word play के जरिए, मिसाल के तौर पर blue eyes, the bluest eyes by the bluest eye by Toni Morrison। हाँ जी, what do you say, what is the meaning of the bluest eye? नीली आंखें। So the bluest eyes, according to the Toni Morrison, mean the bluest eyes, the depressed eyes in agonies and tortures and depressed eyes. I mean मेरी आंखें जो हैं वो कहती है डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। द ब्लूएस्ट आइज जो हैं उसका मीनिंग हमने कहाँ से लेना? पन, वर्ड पन से, वर्ड प्ले से। पन का मतलब ना प्लेइंग विद द वर्ड्स, वर्ड से जैसे प्ले करके उससे हमने नए मीनिंग निकालने, जैसे जॉन डन करता था। तो मेक लिटरेचर सीम लाइक द वर्ड प्ले। डीकंस्ट्रक्शन में हम कैसे फिर चीज़ों को करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो चीज़ें डिस्कस नहीं की उसने, लेकिन हमने उसको रिलेट करके जो मौजूद हैं उसके साथ रिलेट कर करके प्लेइंग विद द वर्ड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग्स। ह्यूमनिस्ट व्यू इट इज़ अ वेज बिटवीन द लाइफ एंड लिटरेचर। वेज का मतलब होता है वैसे बेसिकली ब्लॉक, लिंक, एक से चंक भी इसको कहते हैं। सो लुक फॉर द आइडियोलॉजी दैट आर इन आवर लैंग्वेज। Deconstruction in a practice. In deconstruction, the signified and the signifiers are unstable and can take a multiple meaning. नोट करें इस बात को, उसने वही बात कहा दी जो मैंने कही था। Deconstruct signified and signifiers are unstable and can take multiple meanings. ये ना कहें कि बस एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड वहाँ तक तो उसने फर्डिनेंड डी साशर ने छोड़ दिया, लेकिन बाद में राइटर कहने लगे कि एक चीज़ का मतलब एक तो नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं। वी लिव इन अ लोगोसेंट्रिक वर्ल्ड, वी वांट टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज ग्राउंडेड इन डीकंस्ट्रक्शन। यानी हर चीज़ हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ग्राउंडेड है, सेंटर है। देयर इज़ नो सेंटर अकॉर्डिंग टू डीकंस्ट्रक्शन। कि वो जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग इससे बाहर नहीं जाना, मीनिंग इससे बाहर नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर है, ये पूरी जो टैक्स है इसके अंदर है। लेकिन उन्होंने कहा उसके जो नहीं मेंशन, भाई डेथ डिस्कस कर दी, लाइफ डिस्कस नहीं की, तो उन्होंने कहा इससे बाहर आओ टैक्स से एंड फाइंड मीनिंग। दिस इज व्हाट डीकंस्ट्रक्शन। इन डीकंस्ट्रक्शन दिस इज अपोजिट ऑफ द लोगोसेंट्रिक व्यू। जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो उससे बाहर आके चीज़ों को देखते हैं। हाँ जी, deconstruction and deconstructive analysis. Let's see. In deconstruction analysis, you are looking to reverse the dominant and non-dominant binary opposition. हम देखते हैं कि डोमिनेंट क्लास कौन सी है, नॉन डोमिनेंट क्या है, उनके दरमियान रिलेशन क्या है, उसके अंदर मीनिंग क्या है, क्या वो किसको डोमिनेट कर रहा है। जैसे कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, उनके दरमियान रिलेशन क्या था, कैसे वो उनको डोमिनेट कर रहे थे, क्या कर रहे, सुप्रेस कर रहे थे, वर्क ले रहे थे, उनको बार में लेकर जा रहे थे, वो सॉरी कितने मीनिंग निकलाएंगे अगर डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट क्लास को हम देखेंगे। सो दिस इज हाउ वी फाइंड मीनिंग थ्रू डीकंस्ट्रक्शन, गिविंग द प्रिविलेज्ड स्टेटस टू द ऑप्रेस्ड ऑफ द टू बाइनरी अपोजिट, tries to find the blind spot in the literature. Derrida derived this method because by deconstructing constraints he tried to open the new way of thinking and knowing. अच्छा जी, एक पोएम है, इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये चंक है पोएम का, स्नो बाय द फ्रेडरिक सीडल। स्नो इज व्हाट इट डज। आप गौर से देखिएगा इसको। इट फॉल्स, इट स्टे एंड इट गोज। बात किसकी हो रही है? स्नो की, ठीक है। इट मेल्ट, ये ख़त्म हो जाती है। अब गौर से ज़रा देखिएगा, फिर मैं एक पोएम भी आपको सुनाता हूँ। समवेयर्स वी ऑल विल गेट देयर, यानी उसने स्नो का जिक्र किया है, वो मेल्ट हो जाती है। अब देखिए ये स्नो किसकी अलामत है? लुक एट द सिंबलिज्म ऑफ द स्नो टू एक्सट्रैक्ट द अपोजिट। हमें इसका अपोजिट लेना है। स्नो का अपोजिट क्या है जी? स्नो को अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो ये क्या, एक तो इसका वाइट कलर है, ठीक है, स्नो का वाइट कलर है।
ठीक है। फिर ये क्या होती है, ये कोल्ड भी है, फिर ये विंटर भी है। तो ये ओवरऑल अगर मैंने इसको बताया यूजुअली सिंबलाइज अ डेथ, तो ये सारी अलामत किसकी है, स्नो डेथ की। अंडरस्टैंड। तो जब डेथ डिस्कस हो रही है तो इसका रिलेशन किसके साथ डिस्कस हो रहा है, ये है डीकंस्ट्रक्शन। डेथ, सो द अपोजिट कुड बी लाइफ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लाइफ। लाइफ इज लाइक अ कार विच यू मस्ट केयर फॉर, fill it with fuel, watch out the traffic signal and enjoy a long drive. So these poems then could be talking about the rebirth of the human in religion. Hope you got the point. So today we have discussed about Catherine's 6 chapters, Catherine Balsey's 6 chapter. We've discussed Althusser's concept. I have sent you assignment as well. Althusser ने concept दिया कि कैसे आइडियोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है किसी की, कैसे मीडिया और ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान की आइडियोलॉजी को इफेक्ट करती हैं, वो इन्फ्लुएंस कर लेती हैं, मैनिपुलेट कर लेती हैं। हमने वो अल्थूजर का कंसेप्ट देखा। रोनाल्ड बार्थ का इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सारे जो फिलासफर है। मैंने आपको फर्डिनेंड डी सोशर का सिग्निफायर, सिग्निफाइड और लैंग प्रॉल पढ़ा दिया। कल मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पैराडिग्मेटिक रिलेशन एंड व्हाट इज सिंटैग्मेटिक रिलेशन। आई विल लेट यू नो टुमारो। सो वेज के बारे में बताइएगा। किसके बारे में? वेज, मुझे वेज बोल रहा था ना आपने वर्ड, उसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। किसको? मुझे यहाँ पे नहीं नजर। वेज नहीं, यहाँ नहीं है, पीछे था, पीछे वो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था आपको। बताइए कहाँ? इट वाज इन इम्पैक्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। जी, इसमें है वेज, ह्यूमनिस्ट व्यू। हाँ, ह्यूमनिस्टिक व्यू, इट वाज अ वेज बिटवीन द लाइफ एंड द लिटरेचर। वो कहता है कि ह्यूमनिस्टिक व्यू जो है वो एक लिंक है बिटवीन लाइफ एंड लिटरेचर। इसके लेकिन यहाँ पे कहता है कि ब्लॉक, यानी एक चीज़ है ना, उसके मानी बहुत सारे, मतलब इसका चंक भी है, ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे मैं वो कहता है कि मेन हिंड्रेंस है इसके दरमियान, यानी ह्यूमनिस्टिक व्यू जो है वो क्या है, लाइफ और लिटरेचर के दरमियान एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक है। यानी ह्यूमनिस्टिक जो व्यू है वो क्या कहता है, वो कहता है कि चीज़ें जो उनका व्यू है वो होना चाहिए, लेकिन लाइफ और लिटरेचर जो है they always that they are in a subjective order, not in objective. There is no final meaning in literature or life के भी चूंकि फाइनल मीनिंग नहीं है, तो वो असल में वो कहता है कि ये ह्यूमनिस्टिक व्यू है, ये मेन एक ब्लॉक है, ये मेन एक हिंड्रेंस है लाइफ और लिटरेचर के दरमियान। ह्यूमनिस्टिक व्यू क्या चाहता है कि वट एवर दे थिंक दे वांट टू प्रिवेल, लेकिन ऐसा है नहीं। ह्यूमनिस्टिक व्यू जो है उसमें एक ही व्यू जो है, एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल व्यू हो सकते हैं। मैं एक चीज़ आपके सामने टॉपिक रखूँगा, आपको कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, डीकंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे शुरू हो जाएगी। होप यू गॉट द पॉइंट। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। टुमारो इंशाल्लाह विल कम अप विद न्यू असाइनमेंट।